वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, हाँ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें लिखो द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट is published annually by the United Nations Sustainable Development Solution Network, Sustainable Development Solution Network। ठीक है, अगला नेक्स्ट सॉल्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट द 2021 रिपोर्ट कंपेयर एंड रैंक, 2021 रिपोर्ट कंपेयर एंड रैंक 149 country, compare and rank 149 country on how happy their citizen, on how HOW, on how happy their citizen perceive themselves to be, perceive themselves to be, ठीक है, perceive themselves to be। आगे फिर लिखो जरा नेक्स्ट द सेड रैंकिंग आर बेस्ड ऑन पोलिंग, द सेड SAID said ranking are based on polling, polling which take into account six key variables, हाँ 6 key variables। फर्स्ट GDP per capita, दूसरा होगा सोशल सपोर्ट, सेकंड पॉइंट सोशल सपोर्ट। तीसरा हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ, चौथा फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, पांचवा जेनरोसिटी, पांचवा हो जाएगा जेनरोसिटी। छठा होगा परसेप्शन ऑफ करप्शन, 6 है परसेप्शन ऑफ करप्शन, हाँ परसेप्शन ऑफ करप्शन हो गया, परसेप्शन ऑफ करप्शन। नेक्स्ट द रिपोर्ट 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम, द रिपोर्ट 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम रैंक cities around the world by their subjective, well-being and looked into, well-being and looked into how the social urban
social, urban and natural environment. Social, urban and natural environment. Natural environment combine to affect happiness. Combine to affect happiness. Affect happiness. पहला point. As per World Happiness Report 2022. As per World Happiness Report. Per Happiness Report 2022. 2022. 2022. Next point. This report marked 10th anniversary. This report marks 10th anniversary of the World Happiness Report. Of the World Happiness Report. This year the report rank 146 countries. 146 countries. Next, it report on the current well-being. It reported on the current well-being and broadening analysis. Broadening, broadening, broadening analysis of the ranking effect of COVID-19. Of the ranking effect of COVID-19. Of the ranking effect of COVID-19. Effect of COVID-19. नेक्स्ट पे लिखिए इंडियाज रैंक इंप्रूव फ्रॉम 139. रैंक इंप्रूव फ्रॉम 139. improved from 139 in 2021. 39 in 2021 to 136 in the World Happiness Report. 136 in the World Happiness Report. World Happiness Report 2022. 2022. Happiness Report 2022. Next, Finland became the happiest country. Finland became the happiest country. Became the happiest country for the fifth consecutive year. For the fifth consecutive year. Fifth consecutive year. Fifth consecutive year. Next लिखो. Afghanistan was ranked as the unhappiest. Afghanistan was ranked as the unhappiest. Was ranked of the unhappiest nation. Unhappiest nation. Unhappiest nation. Following by Lebanon, Zimbabwe. Lebanon, Zimbabwe, Rwanda. Lebanon, Zimbabwe, Rwanda and Botswana. Rwanda and Botswana. Rwanda and Botswana respectively. And Botswana respectively. Botswana respectively. ठीक है, आगे लिखो जरा. इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे. इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे. हैप्पीनेस डे इसमें लिखो
It is celebrated every year. It is celebrated every year on 20 March. Every year on 20 March. Under the framework of United Nations. United Nations. Even consider that the pursuit. Even consider. Even consider the pursuit of happiness. The pursuit of happiness is a fundamental human goal. Is a fundamental human goal. Full stop. Goal, GOL, goal. Theme for 2022. Theme for 2022 is Build Back Happier. Is Build Back Happier. Is Build Back Happier. Which will focus on the global recovery. Which will focus on the global recovery from the COVID-19 pandemic. From the COVID-19 pandemic. From the COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic. अब लिखना है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स. ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स. ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स. हैप्पीनेस इंडेक्स. इसमें देखो क्या है. ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स इज ए टर्म. ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज इट. हाँ, national happiness is a term coined by his majesty 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 the fourth king of Bhutan. Majesty the fourth king of Bhutan. Jigme Singhe Wanchuk. Jigme सिंघे. जे लिखो JIGME. जिग्मे SINGYA. वांगचुक WANGCHUCK. वांगचुक. In the 1970 the concept implies that sustainable development should take a holistic approach toward notion of progress and give equal importance to non-economic aspect of well-being. The gross national happiness index is a single number index developed from 33 indicator categorized under 9 domains. 9 domain हो गया. नेक्स्ट लिखो. The concept of GNH
has often been explained, has often been explained by its four pillar good governance, four pillar good governance, sustainable socio-economic development, sustainable socio-economic development, cultural preservation, economic development, cultural preservation, and environmental conservation, preservation and environmental conservation, environmental conservation, environmental conservation, environmental conservation. पैराग्राफ बदलो. दिल्ली हैप्पीनेस, हाँ दिल्ली हैप्पीनेस कैरिकुलम, दिल्ली 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 हैप्पीनेस कैरिकुलम, दिल्ली हैप्पीनेस कैरिकुलम, दिल्ली हैप्पीनेस कैरिकुलम. The curriculum is one of flagship scheme, flagship scheme, flagship scheme, flagship scheme of the Delhi government in the education, of the Delhi government in the education sector, Delhi government in the education sector, launch in 2018, launch in 2018, launch in 2018. The learning outcome are spread, the learning outcome are spread across four categories, across four categories, across four categories. ठीक है. Becoming mindful and attentive, becoming mindful and attentive, full and attentive, developing critical thinking and reflection, developing critical thinking and reflection, critical thinking and reflection, thinking and reflection. हो गया. And reflection. Developing social emotional skill, developing social emotional skill, and developing a confidence, and developing a confidence, and developing a confidence and pleasant personality, confident and pleasant personality, pleasant personality. अगला पैराग्राफ चेंज करके. मध्य प्रदेश became the first state in India, मध्य प्रदेश became the first state in India, first state in India to set up happiness department, to set up happiness department, to set up happiness department in 2016, happiness department in 2016. The department work as knowledge, the department work as knowledge, the department work as knowledge resource center, work and knowledge resource center, resource center about happiness on the line of Bhutan, about happiness
on the line of Bhutan. Happiness on the line of Bhutan. On the line of Bhutan. Andhra Pradesh. Line of Bhutan, Andhra Pradesh. Bhutan, Andhra Pradesh. Became the second state. Became the second state. Second state to have happiness department. To have happiness department. To have happiness department. अब लिखो OECD बेटर लाइफ इंडेक्स. OECD किसका? OECD का. OECD होता है आयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. जितने आयल एक्सपोर्ट करते हैं उन सबको OECD कंट्रीज कहा जाता है. आयल का होता है आयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. लिखो जरा. दिस इंडेक्स कंपेयर वेल बीइंग. दिस इंडेक्स कंपेयर वेल बीइंग. कंपेयर वेल बीइंग across countries. Across countries based on 11 topics. Based on 11 topics which OECD has identified as essential in the area of material living. In the area of material living. In the area of material living. Material living. Condition and quality of life. Condition and quality of life. Condition and quality of life. The 11 topic include housing, life. The 11 topic include housing, income. Include housing, income. Housing, income. Job, community, education. Job, community, education, environment. Community, education, environment. Education, environment. Civic engagement. Civic, CIVIC. Civic engagement. Civic engagement. Engagement. Health, life, satisfaction. Health, life, satisfaction. Health, life, satisfaction. Safety and work-life balance. Safety and work-life balance. Safety and work-life balance. Safety and work-life balance. आगे फिर लिखो जरा. The physical quality life index PQLI. The physical quality life index PQLI. PQLI. हाँ PQLI. It measures the quality of life. It measures the quality of life or well-being of a country. Or well-being of a country. The value is average of three statics. Is average of three statics. Average in three statics. Basic literacy rate. Static basic literacy rate. Infant mortality and life. Infant mortality and right. Infant mortality and life. Expectancy at age 1. Infant mortality, 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 मात्र मृत्यु दर, and life expectancy age 1. It was developed for the
overseas. It was developed for the overseas. Develop. It was developed for the overseas. Development Council in the mid. Development Council in the mid 1970. 1970 by Morris David Morris. By Morris David Morris. By Morris David Morris. अब यहां पे सुनो, मॉरिस डेविड मॉरिस। अभी तक जितना हाथ दर्द हो गया, इतनी देर में हाथ दर्द होगा तो पेपर कैसे करेगी? देखिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे जरूरी चीज क्या होता है? हैप्पी रहना। क्या हम हैप्पी हैं? रहते हैं? नहीं है। तो हैप्पी रहने के लिए क्या किया जाए? तो हैप्पी इंडेक्स क्यों आया? क्योंकि इंडिया की रैंकिंग उसमें बहुत नीचे है। सबसे खुश रहते हैं दुनिया में फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। और तरक्की में सबसे आगे कौन गया? जिसने सबसे अधिक किताबें पढ़ा। सबसे अधिक प्रगति पे कौन गया? जिसने सबसे अधिक बुक पढ़ा। सबसे अधिक किताब पढ़ने वाला देश बताओ? नॉर्वे। नॉर्वे के लोग हमेशा लाइब्रेरी में मिलेंगे आपको। जो सबसे अधिक बुक पढ़ता है वही सबसे अधिक ज्ञानी है। मैंने भी एक टारगेट तय किया है, 1000 बुक्स मैं पढ़ूंगा। कितने दिन में पढ़ूंगा 1000? एक साल में 100 किताबें, तो 10 साल में ये 1000 बुक पढ़ेंगे। जो जितनी फेमस बुक हैं वो सारी पढ़ूंगा मैं। एक हफ्ते में एक पढ़ लेता हूँ, एक हफ्ता, बस एक वीक में एक किताब। तभी तो ये 4-5 बार मास्टर कर चुका। किताबें पढ़ने का बहुत शौक है मुझे। मैं इसलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ जब कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, और उस समय पढ़ लेते हैं 4-5 घंटे, 8 बजे तक। तो या तो रात को लोग देर में पढ़ते हैं या अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। टॉपर वही बनते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ते हैं। क्योंकि जब आप पढ़कर सो जाते हो तो जो भी पढ़ी गई चीज़ है उसका 80% पार्ट भूल जाता है। क्योंकि माइंड भी सो जाता है तुम्हारे साथ, एक्टिव नहीं रहता। क्योंकि जो पढ़ा हुआ है अगर उसका रिवीजन नहीं हुआ 24 आवर्स के अंदर तो माइंड से स्लिप हो जाती चीज़ें। IQ सबका बराबर होता नहीं है, एक जैसे होते नहीं। जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आपको याद रहती हैं, जो नॉट इंटरेस्टिंग है वो भूल जाते हैं। तो 4-5 बुक्स तो महीने में पढ़ना ही है, 5 कम से कम। 12-5-60 ऐसे, लेकिन 100 का टारगेट मैं रखा हूँ कि ये गति थोड़ी तेज करो। कुछ पतली कुछ मोटी मिला के हो जाएगी 100। 100 बुक 1 ईयर, ठीक है। जब आप पढ़ने बैठो तो एक टारगेट लो कि हम इतने पेज पढ़ेंगे। घंटा ना ले आओ, इतने पेज कि 200 पेज आज पढ़ेंगे, आज 100 पेज पढ़ेंगे। तुम घंटे में पता चला कुछ नहीं किया, इधर उधर टेलीविजन देखते रहे, कहीं मोबाइल देख लिया, घंटा तो चला गया। तो आप पढ़ा क्या? पढ़ा घंटे में टारगेट नहीं होना चाहिए पढ़ाई का, मटेरियल में होना चाहिए, पेजेस में होना चाहिए टारगेट। कि इतनी ये बुक इतने पेज की है तो आज मैं इसको आधी पढ़ लूंगा, ठीक है। कुछ लोग यूपीएससी देने वाले 10-10 बार पढ़ लेते हैं लक्ष्मीकांत को, 10-10 बार। तुम एक बार नहीं पढ़ते हो, 10-10 बार पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक की बुक को 10-10 बार पढ़ लेते हैं। तो एक बार पढ़ा कुछ छूटा, दोबारा पढ़ा कुछ और आया, तीसरा पढ़ा और कुछ आया। अब कोई 10 बार किसी किताब को पढ़ लेगा तो सब कुछ तो जानेगा, फिर उससे कहाँ बचने वाली कोई चीज, ठीक है। तो जो एग्जाम नहीं पास करते वो एक बार भी किताब को ठीक से नहीं पढ़ते, और जो कई बार बुक को पढ़ लेते हैं वो टॉपर बन जाते हैं। फैसला आपके हाथ में है, करना क्या है। तो लेट सोने वाले लोग कभी जीनियस नहीं होते हैं, ये आप लिख के रख लो। जो लेट सोता है, लेट सुबह उठता है, उसका दिमाग उतना अच्छा काम नहीं करता। फिर आता है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें क्या है मेन। तो इन्होंने कहा कि पहला है परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी जीडीपी में परचेजिंग पावर। खुश कब रहते हो? जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा खुश है या कम कमाने वाला? मार्क्स ये कहता है कि सब कुछ यहीं पर है। इस गलत फहमी में मत जियो कि हम मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वहां कुछ नहीं है, ये कहा कार्ल मार्क्स ने। और यही तो तुम्हें देकर लेबर क्लास को कहता है, यही झुंझुना आपको पैसे वाले पकड़ा देते हैं और तुम उसी में मस्त रहते हो कि पैसा कमाने से कुछ नहीं होता, ऐसे खुश रहो। लेकिन मटेरियल कल्चर जिन देशों में है, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, वहाँ के लोग खुश नहीं रहते हैं। क्योंकि वो हमेशा, उनका जो वो है खुश रहने का इंडेक्स वो हमेशा ऊपर रहता है। क्योंकि तुमसे ज़्यादा सुविधाएं भोग कर रहे होते हैं, तुमसे ज़्यादा सब चीज़ उनके पास होता है, तो और ज़्यादा के पीछे वो टेंशन में रहते हैं।
लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है, तन पर कपड़े भी नहीं होते गरीबों के, फिर भी चेहरे पर स्माइल होती है। लेकिन विदेश के लोग सब कुछ है उनके पास, पैसा भी इतना, फिर भी हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो नेचुरल खुश कहाँ के लोग रहते हैं? भारतीय। और भारत का धर्म ही ऐसा जो खुश रहने देता है। मथुरा लोग चले जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेके नहीं जाते, खाना खाते हैं उसी में मंदिर में खुश रहते हैं। और वहाँ के लोग किसी भगवान की पूजा नहीं करते, क्रिश्चियंस की भी नहीं करते हो, और वो बस मटेरियल कल्चर के पीछे भागते हैं, भौतिकवादी दुनिया के पीछे। तो शांति जो है भौतिकवादी कल्चर में तो बिल्कुल नहीं है। खुश रहना है तो भौतिकवादी कम बनना है, मार्क्स के विचारों को अप्लाई नहीं करना है। लेकिन नीड ऑफ लाइफ ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खाने की चीजें भी तुम ना खरीद पाओ, इतने गरीब हो जाओ, तब तो खुश रह ही नहीं पाओगे किसी कीमत पे। तो खुश रहने का मतलब है एक मिनिमम रिक्वायरमेंट लेवल जो है उसको तो फुलफिल करो। अब जाड़ा आ गया, जाड़े में कपड़े ना ले पाओ, सर्द ऐसे लग जाए, खुश कहाँ से रहोगे, रोज जुकाम पकड़ेगा। तो खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप इन सब चीजों से दूर रहो। खुश रहने का मतलब यह है कि इन सब चीजों में भी इन्वॉल्व रहो, रिक्वायरमेंट आपकी जो हो उसके अकॉर्डिंग काम करो। रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग काम करना है। तो आप समझ गए कि खुश रहने में क्या जरूरी है। दूसरा, पहला तो जीडीपी पैसा होना जरूरी है खुश रहने के लिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि सोशल सपोर्ट। अगर आपकी समाज में बड़ी तारीफ होने लगे कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं, रिलेटिव आ जाए तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, कनिष्का सारे रिश्तेदार पार्टी में आए तेरी ही तारीफ करें, तो फिर क्या लगेगा तुझे, कैसी फीलिंग आएगी? बढ़िया लगेगा। लेकिन बायरन कहता है कि फीमेल की सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी तारीफ। तारीफ करो बस, और जो बुराई करता है उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता उसका, चाहे वो क्वालिटी उसमें हो या ना हो। ठीक है। जनरली एक स्टेटमेंट होता है कि ऑल ऑल गर्ल्स आर फ्लावर बट सम गर्ल्स आर फूल। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। सारी फ्लावर हैं बट कुछ उसमें क्या है, हाँ फूल भी है। जैसे बॉयज के बारे में, ऑल बॉयज आर डॉग्स बट सम बॉयज नहीं, ऑल बॉयज आर हॉर्स बट सम बॉयज आर डॉग्स। ठीक है, ऑल बॉयज आर हॉर्स बट सम बॉयज आर डॉग्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाने वालों का ध्यान जरूर इन सब चीजों पे गया होगा, तभी ये इस तरह का क्वेश्चन बना दिया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये चलता रहता है सोसाइटी में। तो तारीफ कौन नहीं सुनना चाहता, हर कोई सुनना चाहता है। ठीक है। तो यहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स में सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी है। जिस समाज में आप रहते हो उस समाज के लोग आपकी तारीफ करें। आपकी तारीफ बाहर हो रही है, घर में नहीं हो रही है, तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन घर में लोग तारीफ करने लगे, अच्छा खाना खिलाएं, अच्छे कपड़े तुम्हारे मन का खरीद कर लेके आए, तुम जहां को वहां घुमाने ले जाएं, तो फिर खुशी का कोई ठिकाना नहीं है आपको। ठीक है। तो सबसे ज्यादा खुश कहाँ की तारीफ से लोग होते हैं? अपने लोगों की। कहते हैं आपने दुनिया में सब कुछ कर लिया बट अपने लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं किया। तो लोग कहेंगे क्या किया, कुछ तो नहीं किया। कहते ही लोग बार बार आप सब करते रहिए, घर के लोगों को कोई फायदा मिले आपके काम का, तो कहेंगे कुछ तो नहीं किया, हमें तो उसका कोई फायदा नहीं मिला, बाहर क्या कर रहे हैं, हमसे क्या मतलब। ठीक है। तो सोशल सपोर्ट जरूरी है, फैमिली सपोर्ट जरूरी है। फिर है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ, वो बर्थ का मतलब यही है कि हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। हेल्दी लाइफ का मतलब रोज सर्दी जुकाम ना पकड़ रहे आपको, फिट रहो और हिट रहो। मतलब योगा, मेडिटेशन और हेल्दी फूड खाइए। फूड इसलिए ना खाओ कि जो तुम्हें अच्छा लगता है, नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, शरीर को क्या जरूरत है वो खाओ। ये नहीं तुम्हें क्या टेस्ट अच्छा लगता है वो खाओ, उससे तुम बीमार हो जाओगे। नीड ऑफ लाइफ। तो यहां पर भी कहा इन्होंने हेल्दी लाइफ। फिर कहा फ्रीडम टू मेक लाइफ लाइफ चॉइसेस। कोई भी महिला किस काम से सबसे अधिक खुश रहती है? क्वेश्चन जवाब दो। तुम लोग खुद ही फीमेल हो, महिला कौन से काम से सबसे ज्यादा खुश हो जाती है? कौन सा ऐसा काम है महिलाओं का जो सबसे अधिक खुश रहती है? अब जब खुशी इंडेक्स ही पढ़ रहे हो तो ये बात बतानी पड़ेगी। फीमेल को किस काम को करने से सबसे अधिक खुशी मिलती है? करेक्ट आंसर, वो सही बता रही है, शॉपिंग। कोई भी मेल पर्स अपना दे दे पूरा कि ले जाओ, पूछे ना कुछ भी कि तुमने क्यों खरीदा, किस लिए, तो इससे ज्यादा खुश किसी चीज से नहीं रहती फीमेल, सबसे अधिक शॉपिंग से।
खरीदारी से। और अगर किसी मेल ने कह दिया मत खरीदो, तो फिर दुश्मन उससे बड़ा कोई नहीं। ठीक है, दुकानें एक भी ना चले अगर महिला ना हो, ये वर्ल्ड सर्वे रिपोर्ट कह रही है। मेल से चलते नहीं है माल्स वगैरह, सब फीमेल की वजह से चलते हैं। और डेवलपमेंट में आदमी का योगदान कम होता है, महिला का ज़्यादा होता है। पूरे वर्ल्ड का 18.1 ट्रिलियन डॉलर खर्चा है, जिसमें 12.4 ट्रिलियन डॉलर केवल महिलाओं का, और 6 कुछ ट्रिलियन डॉलर मेल और बच्चे सारे उसमें आते हैं। सामान किसके महंगे होते हैं, आदमी के या महिलाओं के? फीमेल के महंगे होते हैं। 50 रुपए में सैलून में काम चल जाता है एक मेल का, और उसी के आगे जीरो बढ़ाओ, जीरो बढ़ाओ तो भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो कौन चलाता है? फीमेल चलाती है मार्केट को। आगे फिर आता है परसेप्शन ऑफ करप्शन। बताइए, करप्ट मेल ज्यादा होता है या फीमेल? मेल ज्यादा करप्ट होते हैं, सही है। 10 में एक महिला होगी जो करप्शन में भरोसा होगा जिसका, लेकिन 99% महिलाएं करप्शन से दूर रहती है, टेंशन नहीं लेना चाहती वो जरा सा भी। ठीक है, आगे फिर देखो 2020 रिपोर्ट ये कह रही है कि दे आर सब्जेक्टिव है। जनरसिटी कौन? ये फिफ्थ वाला पॉइंट, जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब ये होता है कि हर कोई जेंडर वाला अपनी जेंडर को फेवर लेगा, महिला महिला को लेगी, मेल मेल को लेगा। लेकिन ये ईर्ष्या जलन में कभी कभी उल्टा हो जाता है। जैसे महिला कोर्ट बनाया आंध्रा ने कि महिलाओं के साथ न्याय होगा, एक भी महिला किसी महिला के फेवर में कभी जजमेंट नहीं दिया। एक दो उसमें भी कांड हो जाते हैं एरोप्लेन में, तो वहां अगर फीमेल पायलट उसकी जांच कर रही है और फीमेल ने एलिगेशन किसी पायलट पे लगाया है, तो पता चलाता है मेल बरी हो जाते हैं। अगर महिलाओं के हाथ में, कहते नहीं है कि महिला का न्याय महिला के हाथों में, बिल्कुल नहीं होने वाला। उसके एंटी ही फैसले सुना देगी। कोर्ट में जज हैं कई ऐसे जो महिला है, मेल के ऊपर एलिगेशन किसी महिला ने लगाया, उसने बरी कर दिया, कहा ये झूठा एलिगेशन है, ऐसे तो बहुत लगाती रहती। तो जस्टिफिकेशन मेल तो फेवर लेते हैं, फीमेल फीमेल का फेवर कभी नहीं लेती, बहुत रेयर टू रेयर। जब बहुत दयनीय स्थिति हो जाए तभी लेगी। मेल जरूर दया दिखा देते हैं, ठीक है, कि सही लगा रही होगी, पकड़ो जेल में डालो, लेकिन महिला कहेगी बरी करो, ये कोई इतना बड़ा एलिगेशन नहीं है अगर गंभीर मामला नहीं है तो। एज पर वर्ल्ड हैप्पीनेस 22 में देखो इसमें क्या हुआ, रिपोर्ट में 10th एनिवर्सरी वर्ल्ड रिपोर्ट 146 कंट्रीज में शामिल किए गए, और इंडिया का रैंक क्या आया जानते हो? 146 में 136 रैंक 2022 में। वन हैप्पीनेस इंडेक्स में 146 कंट्री में इंडिया की रैंक क्या है? और एशिया में सबसे खुश रहने वाला देश कौन मिला है? फिनलैंड। और अफगानिस्तान सबसे अधिक क्या है? अनहैप्पी, क्योंकि वहां पर कोई भी फीमेल खुश नहीं। हाँ, कंजर्वेटिव्स हैं, वो अपने ही रूल चलाते हैं। अभी देखो ईरान में महिलाओं ने क्या कर दिया, बुर्का पहनना ही बंद कर दिया, फेंक दिया सब। कहा वही तुर्की, वो भी एक मुस्लिम कंट्री, वहां कोई नहीं पहनती तो हम क्यों पहने, सिया का देश है वो। तो धीरे धीरे हमारे जो रिलीजन्स है, रिलीजन मानना ताकत वाली बात है, जब रिलीजन मानते हो तो पावर मिलता है। लेकिन अंधा रिलीजन, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, अब रास्ते पे ना जाओ, यहाँ कोई लॉजिक तो नहीं बनता। तो ऐसी चीजों को अंधविश्वास कहा जाता है, जो तार्किक नहीं होती। रिलीजन में तार्किक ना हो क्या है? अंधविश्वास है। तो बहुत से अंधविश्वास भी प्रचलन में हैं, वो पहले बैरियर के रूप में लिए जाते थे, अब उन अंधविश्वासों को हटाना होगा। जैसे हर हर सरदार हेयर रखना जरूरी तो नहीं, जुट्टी पहनना। अब जुट्टी पहनने से सरदार को क्या नुकसान होता है? आर्टिकल 25 में सिक्योरिटी दी गई है कि अगर बाल ही कोई बड़ा रखता है तो अनसेफ है वो, उसका हेयर पकड़ लो बस। ऑल ड्राइव मूवमेंट्स मतलब कंट्रोल में रहेगा। हेयर छोटे लोग रखते हैं, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी देते हैं। हेयर अगर हाथ में किसी का आ गया तो कंट्रोल में ऐसे आ गया। इसलिए सरदारों को कृपाण लगाने की दी गई है मंजूरी, कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिलीजन वाइज हैं, बट उसी रिलीजन को सेफ्टी और प्रोटेक्शन नहीं दे पाती वो चीजें, ठीक है। तो उनको अब समाज से जाने का टाइम आ गया है। जैसे एक के साथ कई महिला का रहना, ये भी अब नई सोसाइटी अलाउ करेगी, क्योंकि वो सब पहले वाले जमाने जा चुके हैं, ठीक है। अब सोसाइटी कहती है एक के साथ एक ही रहेगी, अनेक नहीं, वो टाइम जा चुका है। आगे फिर लिखो जरा नेक्स्ट।
नहीं, रुकिए जरा, इंटरनेशनल हैप्पी डेज कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैप्पी, लिखो हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? हाँ 20 मार्च। अब लिखना है ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, ये भी लिखवाया, लिखवा दिया। दिल्ली हैप्पीनेस, मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश सबसे अधिक हैप्पी स्टेट माना गया था। ठीक है, हैप्पी डिपार्टमेंट ने कहा मध्य प्रदेश को। OECD हो गया। अब आते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिजिकल PQLI आपने समझा? मैंने कल ही बताया था कि SDI इंडेक्स जो है अमेरिकन नहीं मानते, वो समझते हैं कि एशिया के लोगों ने इंडेक्स बनाया है, तो ये एक अच्छी क्वालिटी वाला इंडेक्स नहीं है, तो उसकी जगह वो किसको मानते हैं? PQLI को। PQLI में पर कैपिटा इनकम नहीं है, वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड को लिया गया है, पर कैपिटा इनकम नहीं। किसी भी व्यक्ति की कमाई है बट घर में टीवी नहीं है, घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं है, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन है। कुछ लोग कमा के पैसा रखे रहते हैं बट अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करते, तो PQLI कहता है पैसा होने से लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधर जाएगा, जीवन स्तर सुधारने की उनमें विल पावर होनी चाहिए। कुछ के पास पैसा है बट बड़े कंजूस है, अठन्नी नहीं खर्च करने वाले, तो कपड़े ऐसे फटे पुराने पहन के टहला करेंगे, तो उसके लिए वो कहते हैं कि ये सही नहीं है, ऐसे लोग हैप्पी नहीं रहते पैसा होने के बाद भी। ठीक है, और थोड़ा सा कहीं खर्च हो गया तो दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए PQLI जो इंडेक्स है उसमें पर कैपिटा इनकम नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड है। अब लिविंग स्टैंडर्ड में घर में 2 व्हीलर गाड़ी है नहीं है, फ्रिज है नहीं है, तो है क्या कह रहे हो? वहाँ अब एक बात सुनो, यहाँ पर वो गरीब नहीं है। US में एक रूल बनाया गया है कि अगर आप गाड़ी खरीदते हो और 1000 किलोमीटर एक महीने में यात्रा नहीं करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, वहाँ ये रूल है। तो वहाँ गाड़ी लोग शेयर करते हैं, हमारे यहाँ दरवाजे पे लाके खड़ी रखेगा, जाना कहीं नहीं है। घर के बगल में कोई IAS है, उसके पास कार है, तो जो क्लर्क है वो भी कार खरीद लाएगा। करप्शन क्यों इंडिया में है? वो उस स्टेटस को दिखाने के लिए करप्शन करेगा। अब वो IAS है, वो मेंटेन कर सकता है 4 व्हीलर, तुम नहीं कर सकते तो मत खरीदो, लेकिन खरीद लाएगा, हम भी तुमसे कम नहीं, भले ही चोरी करेगा। एक गाड़ी लेके आता है स्वयं चलता है, एक टैक्सी में लगा देता है कमाने में। तो US में कार खरीदने नहीं देती सरकार, नहीं तो यहीं आला हाल हो जाए। दिल्ली में देखो कितने मर्डर हो जाते हैं। देश में सबसे अधिक कार कहाँ पे है? दिल्ली में। यहाँ हर तीसरे व्यक्ति के पास कार है। बॉम्बे में 20 लाख कार, दिल्ली में 60 लाख कार है, हर किसी के पास कार है यहाँ पे, हर तीसरा व्यक्ति। समझ में आया? वहाँ कार नहीं होता तो उसकी वजह है कि वहाँ शेयरिंग सुविधा है कि आप 1000 किलोमीटर महीने में नहीं चलाते हो कार, तो लाइसेंस यहाँ भी रद्द कर देना चाहिए, खरीदने नहीं देना चाहिए। यहाँ पर भी दिल्ली में इतना कारों का काफिला है जो पोल्यूशन फैलाता है, इसके पीछे यही रीजन है कि गाड़ियाँ ज़रूरत से ज़्यादा हैं। खड़ी करने, देखो यहाँ पे खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, बहुत जगह दरवाजे के सामने कहाँ खड़ी कर दें, इतनी गाड़ी है। और ये छोटे सिटी में चले जाओ तो देखने को कार नहीं मिलती, 100 में कहीं एक के पास होती है। तो US घूमना है तो छोटे शहर में घुमाया करो तुम, कनिष्का। ठीक है, GK हमारी बहुत तेज है, दुनिया की कोई बात लाओ तुम्हें तुरंत हम आंसर देंगे। जो वीक है उस पर कमांड पाओ, जो आपका गिफ्ट बाय नेचर है वो तो अच्छा ऐसे रहने वाला है। जैसे करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इस समय मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, वो न्यूज़ सुन के मैं अपडेट रखता हूँ उसको। दिन भर मेरा करंट अफेयर का टॉपिक चलता है, परमानेंट जो है वो सुबह के समय दिन भर करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, क्या क्या न्यू डेवलपमेंट हुए। आप लिखो जरा, अभी इसको याद रखना, PQLI किसने किया था? मॉरिस डेविड मॉरिस ने। PQLI इंडेक्स को डेवलप किसने किया? मॉरिस डेविड मॉरिस ने। मॉरिस डेविड मॉरिस ने PQLI को किया। अब सस्टेनेबल पे कल बात करते हैं, ठीक है।